Hello students, this is the class of business studies for class 12th and this is your first chapter on nature and significance of the management. Okay. प्रीवियसली जो आपको वीडियो अवेलेबल्स करा दिए गए थे जिसमें हमने आपको मैनेजमेंट के फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करा दिए थे थ्रू द नोट्स. यू ऑलरेडी प्रिपेयर द नोट्स, आपने नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं एंड वी ऑलरेडी टॉट यू थ्रू द वीडियो क्लासेस. ओके, बट नाउ फ्रॉम टुडे we revising you from the first chapters, very beginning from the first chapters for your preparation of the 2021. Now the first one is the definition of the management. What is the meaning of the management? Management is a process of getting things with the aim of achieving goal effectively and efficiently. Okay. What is the purpose of the management? What is the meaning of the management? Actually means management to manage the activities, to manage the work, to manage the persons, okay, to manage the organization. That is called the management. किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी चीज़ का प्रबंध करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको ठीक प्रकार से चलाना, that is called the management. okay. तो बट हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैनेजमेंट क्यों करते हैं? वाई वी रिक्वायर द मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए बोलता है द एम इज़ अचीविंग गोल. That is, all the activities performed by the managers, all the activities performed by the employees in the organization, the main objective is to achievement of the organizational goal. It is called the common goal. It is an organization goal. It is called the common goal. Okay. गोल क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, हम यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट केवल बिजनेस में होता है. मैनेजमेंट घर में भी होता है. मैनेजमेंट पॉलिटिकल्स में भी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी होता है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी होता है, चैरिटेबल्स में भी होता है. इन एवरी फील्ड देयर इज़ अ नीड ऑफ द मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो एवरी थिंग इज़ इन द इनडिसिप्लिन मैनर. ओके, इनडिसिप्लिन मैनर में होगा, द गोल कैन नॉट बी अचीव. तो गोल को अचीव करना आपका क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, उसको एक पर्टिकुलर गोल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि उसका गोल है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है ₹50 करोड़. दैट इज़ the goal of the organization. By selling the goods and services, by producing the goods and services, we have to achieve the 50 crores target. हमें 50 करोड़ का टारगेट अचीव करना है. that is the achievement of the organizational goal and it is called the common goal. It is the organizational goal or the common goal or the group goal. बात तीनों में एक ही होती है. and why it is called the common goal or the group goal? because it is the goal of every person who work in the organization. वो हर पर्सन का गोल है. either he perform at the lower level or he perform at the top level. okay. तो यहाँ पर आता है management is a process. okay. the 3 things in the definition. management is a process. It is the process. okay. what is the meaning of the process? Because for the achievement of the organizational goal, the management is the further divided into the 5 parts. These further are called the functions of the management. That is, every manager has to perform these 5 functions for the achievement of the organizational goal. And what is the function? The function is the planning, organizing, staffing, directing and controlling. And these functions must be performed in the sequence, in the steps, in the sequential order. okay. sequence में इनको perform करना है, इनको step wise perform करना है. that is the first function is the planning. everybody has to make the plan. everybody, सबको plan बनाना है. ठीक है. for the achievement of the organizational goal, every big house और द स्मॉल हाउस किसी गोल को अचीव करना है. अब मैं आपको सिंपल सा एक वो देता हूँ कि आपको किसी मैरिज पार्टी में जाना है. तो मैरिज पार्टी में जाना, अगर आपको शहर से बाहर जाना है तो उसके लिए भी क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है. आप कब जाओगे, आपका ड्रेसअप क्या होगा, आपको गिफ्ट क्या देनी है, आपको ट्रेन में कैसी व्यवस्था करनी है, रिजर्वेशन कराना है, अपनी गाड़ी से जाओगे. ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लानिंग. ये सारी की सारी क्या होता है? प्लानिंग का एक पार्ट होता है. तो चाहे वो बिग हाउस है, चाहे वो छोटे हैं बिजनेसमैन है, तो प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग दैट इज द कलेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज. ओके, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना. एंड देन द स्टाफिंग. ओके, स्टाफिंग रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्सेज. इन द अदर वीडियोज़ जो आपके आगे वीडियो आएंगी, दीज आर द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. इन फंक्शंस को आपको सेपरेटली समझाया जाएगा, बट बेसिकली ब्रीफली मैं आपको थोड़ा यहीं पे बता रहा हूँ. डायरेक्टिंग, it is a directions, it is a starting of the activities, initiate of the activities, initiate of the action, and the controlling is the last activities. okay. So these are the functions of the management which
every organization has to follow for the achievement of the organizational goal. That's why management is called the process. बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, why management is called the process? Because it contains the series of the function which every organization, which every manager has to follow for the achievement of the goal. That's why the management is called the process. So management is a process of getting thing done with the aim of achieving goal. Okay, तो इन फंक्शंस को परफॉर्म क्यों किया जा रहा है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल. बट अब गोल का अचीव कब हो? कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि 50 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, तो 50 करोड़ का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कब अर्न करना है? 1 साल में अर्न करना है, 3 साल में अर्न करना है, कि 10 साल में अर्न करना है? ओके, तो इसमें 2 वर्ड आते हैं, वन इज कॉल्ड द इफेक्टिवली एंड द सेकंड इज द एफिशिएंटली. इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली मीन्स, इफेक्टिव मीन्स completion of the work on the time, achievement of the goal on the time, as per the pre-decided time. As per the pre-decided, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया है, तो विद इन द टाइम फ्रेमवर्क के अंदर द गोल मस्ट बी अचीव. दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिवली. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफिशिएंटली? इट मीन्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड व्हाट डज इट मीन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज? Using of the resources in such a manner that by which we get the maximum output. Resources को ऐसे यूज़ किया जाए कि हमें उससे maximum output मिले. That is the minimum cost and the maximum output. Okay, तो these are the 3 basic elements in the definition. One is management is a process. तो बोला जाता है why management is called the process? Because it contains the series of the function and every manager has to follow these functions in the sequential order or in the steps. Okay, then effectively, that is the completion or the achievement of the goal on the time. And the last one is the efficiently, first one is the effectively and the second one is the efficiently. Efficiently is the optimum utilization of the resources. Okay, now the next topic is what is the features of the management. Management के आपके features कौन कौन से होते हैं? तो the first features is the goal oriented process. जैसे आपने पहले ही पढ़ा है कि all the functions of the management, all the activities in the management is performed for the achievement of the organizational goal. There is a certain goal that is called the group goal or the organizational goal. कि कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म की जा रही है वो एक सर्टेन गोल को अचीवमेंट करने के लिए की जा रही है. That's why it is called the goal oriented process. Then second one is the pervasive. What is the meaning of the pervasive? Pervasive, it is a universal phenomena. Universal phenomena, that means that is the management is the applicable not only on the business activity but the social, the political, the religious, the culture or any type of the activity. The management is present everywhere. Management हर जगह present होता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो USA में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है. That's why it is a universal phenomena. It is a universal phenomena or it is a pervasive in nature which is available, which is the present everywhere. Okay, बहुत बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कावड़ का समय हो या कुंभ का समय हो, आपने देखा होगा कि थोड़ी सी दूर जाना है लेकिन क्या बोलते हैं बल्लियों के माध्यम से एक रास्ता क्रिएट किया जाता है कि आपको जिग जैग मैनर में घुमाया जाता है. तो दिस इज द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द मॉब्स, यानी भीड़ को कंट्रोल करने का एक तरीका है. आपने जिग-जैग मैनर में एक रास्ता देखा होगा कि भीड़ को कंट्रोल करने का एक तरीका है. या रोड में ज़्यादा भीड़ जाती है तो रास्तों को क्या कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है टू कंट्रोल द ट्रैफिक. तो दिस इज द मैनेजमेंट. उसको क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है. तो मैनेजमेंट इज द परवेसिव इन नेचर and it is a continuous process. Why it is called the continuous process or it is called the never ending process? Because it contains the series of the function. It is a process. It is a continuous process, series of the function which every manager has to follow in the sequence. Sequence में follow करना पड़ता है, steps follow करने. After planning they have to perform the organizing, then staffing, directing and the controlling and so on. So this is a continuous process. The fourth one is the group activity. मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म इन द आइसोलेशन. आइसोलेशन में मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल कि मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ, ओके, मैं गोल को अचीव करूँगा. नो, मैनेज, दैट इज अ मैनेज अदर्स. आप दूसरों को मैनेज कर रहे हो, आप एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, आप पर्सन्स को कंट्रोल करते हो. तो दैट्स वाई द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. दैट इज इसलिए क्या बोला जाता है कि ग्रुप गोल है. ग्रुप डैट इज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उन सबको मैनेज करके चलना पड़ता है. तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म इन द आइसोलेशन. मैनेजमेंट को आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते. तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. द नेक्स्ट वन इज द डायनामिक. डायनामिक मीन्स बेटा फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल, इट इज अ चेंजेबल, नॉट रिजिड, नॉट स्टैटिक, फिक्स नहीं है. ओके,
कि फॉर एग्जाम्पल वाई इट इज कॉल्ड द डायनेमिक, तो एज पर द सिचुएशन, ओके देखो देर आर द जनरली बिजनेस जो होता है, बिजनेस आर अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स, बिजनेस सराउंडिंग्स से अफेक्टेड होता है कि फॉर एग्जाम्पल इन द करंट सिनेरियो वी आर टीचिंग फ्रॉम होम, वी आर टीचिंग फ्रॉम द स्कूल बट थ्रू द ऑनलाइन। अभी करंटली हम स्कूल से टीच कर रहे हैं, इससे पहले हमने अप्रैल और मई में जो आपको टीचिंग करी थी इट इज़ फ्रॉम द होम। अब करंटली टीचर्स आपको स्कूल से टीच कर रहे हैं, तो कैसे टीच कर रहे हैं, आपको वीडियो बनाया जा रहा है, आपको यूट्यूब में अपलोड किया जा रहा है, यूट्यूब से आपको लिंक दिया जा रहा है। तो लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो आप कहाँ पर बैठ के पढ़ते, क्लास में। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द प्लानिंग हैज़ टू बी चेंज, ओके। तो प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है, एक्टिविटीज़ को चेंज करना पड़ता है, डेट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द डायनामिक। कि ऐसा नहीं है कि जो एक बार सोच लिया उसको हमने परफॉर्म करना, भैया हम उससे बिल्कुल नहीं लेंगे, ओके। तो अब एज पर द नीड्स, एज पर द रिक्वायरमेंट, हर पर्सन को, हर बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ करने का तरीके क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। डेट्स व्हाई द मैनेजमेंट इज द डायनामिक इन नेचर एंड मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, इट इज अ सर्विसेज विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन, बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट, इट प्रेजेंस कैन बी फील, ओके। आप देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। हाउ? द प्रॉपर अरेंजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कितना है। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन द डिसिप्लिनरी मूवमेंट्स, कि वो डिसिप्लिन मूवमेंट से कैसे वर्क कर रहा है। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव द गोल टाइमली, हाउ दे कंप्लीटेड द वर्क इन प्रॉपर टाइम, हाउ दे यूज द रिसोर्सेज। ऑल दीज आर द थिंग्स विच कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन। इनको नहीं देख सकते, लेकिन एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशंस को आप फील कर सकते हो। दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर, ओके। एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। फिर मैंने बोला था मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट वर्क का मैनेजमेंट है, पीपल का मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस का मैनेजमेंट है। व्हाट इज द वर्क? दैट इज द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को मैनेज करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, उसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपल? एक्चुअली द मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्सेज ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर सबसे वैल्यूबल रिसोर्सेज को लेकर चले, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, द पर्सन हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, that two organization can have the same type of the physical resources, same type of the financial resources. उनकी बिल्डिंग एक जैसी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक जैसा है, बोथ द वर्क इन द सेम टाइप ऑफ द बिल्डिंग, यानी सब कुछ एक जैसा है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर तभी जा सकता है इफ दे हैव द कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट हाउ दे यूज देयर रिसोर्सेज। वो अपने मैन रिसोर्सेज को, मैन पावर को, वर्क फोर्स को, ह्यूमंस को, एम्प्लॉयज़ को कैसे डील करते हैं, कैसा उससे यूटिलाइजेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। एंड ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस इज its human resources, its manpower, okay. And the last is the management of the operation. Management of operation, work, it is an activity. What activity have to be conducted? People, that is how we use the human resources. और जब ह्यूमन रिसोर्सेज को हम वर्क के साथ मिला देते हैं देन इट बिकम द ऑपरेशन। तो हमारा वर्क शुरू होता है। सिंपल सी लैंग्वेज ले लीजिए, बुक्स अलग पड़ी है, स्टूडेंट अलग बैठा है, ह्यूमन रिसोर्सेज अलग बैठा है और बुक्स आपकी अलग पड़ी है, यू कैन नॉट परफॉर्म योर एक्टिविटीज़, ओके। देयर इज़ अ नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन टू ब्रिंग टुगेदर। उन सबको क्या लाना है? पास लेकर आना है फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल।